خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کسی شخص کے یہاں عید کے دن انتقال ہو جائے تو کیا وہ قربانی کو موقوف کر سکتا ہے یا پھر بلا جھجک وہ اپنی قربانی کر لے؟ بلا جھجک اس کو قربانی کرنی ہے، بلکہ اگر قربانی واجب تھی کسی پر، گھر کے فرد پر جیسے، تو وہ تو اس پر بدستور واجب ہے، قربانی کرے اس کو۔ گوشت بھی اس کا کھایا جا سکتا ہے، پکایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی شاید مشہور ہے کہ گھر میں چولہا نہیں جلا سکتے وہ میت والے گھر میں، تو ایسا بھی نہیں ہے، چولہا بھی جلا سکتے ہیں۔ اب فاقہ کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، فاقہ بھی نہ کرے، بے شک جس کے یہاں میت ہو گئی اس کو کھانا کھانے کی بھی اجازت ہے، بلکہ پڑوسیوں کو ایک دن کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ اہل میت کو کھانا کھلائیں۔ وہ غم ہوتا ہے تو تھوڑا کھانے میں اور دل نہیں کرتا، تو ان کو اصرار کے ساتھ پڑوسیوں کو چاہیے کھانا کھلائیں۔ تو یہ صرف پڑوسیوں کے لیے سنت ہے، رشتہ دار دور سے کھانا لاتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، پڑوسیوں کے لیے سنت ہے کہ وہ اس کو ایک دن کے لیے کھانا پیش کریں اور کھلائیں اس کو۔ مہمان جمع ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے سنت، میت کے جو گھر والے ہیں نا صرف یہ ان کو کھلانے کی سنت ہے۔ آج کل تو بڑے میلے لگتے ہیں اور دعوتوں کا سما بعض اوقات بن جاتا ہے، اور لوگ تدفین سے فارغ ہو کر آتے ہیں، اور دیگیں بھی تیار ہو کر آتی ہیں، اور اعلان بھی ہوتا ہے کہ وہ سب کھانا کھائیں۔ ہمارے یہاں تو یہ اعلان ہوتا ہے، چاہے وہ دن دہاڑے ہو اور رمضان شریف نہ ہو، تب بھی اعلان ہوتا ہے کہ روزہ کھول کے جانا۔ یہ زبردستی کا روزہ ہے، کوئی روزہ نہیں ہے اس میں۔ یہ بہت ساری باتیں لوگوں نے اپنے اوپر وہ بس مسلط کر لی ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد بھی اعلان ہوتا ہے کہ مہمان روٹی کھا کے جایا جی، جو مہمان ہیں جی وہ روٹی کھا کے جائیں، اور کڑوی روٹی بولتے ہیں جی، کڑوی روٹی بعض لوگ کڑوی روٹی بولتے ہیں۔ ہم نے اپنے یہاں اپنی برادریوں میں دیکھا ہے کہ روزہ کھول کے جانا، اس طرح کا بھی دیکھا ہے، تو یہ اس کی حاجت نہیں ہے، یہ تو غلط طریقہ ہے۔ اور کھلانا ہے تو صرف مساکین کو کھلایا جائے، غربا کو کھلایا جائے۔ یہ سب لوگ کھاتے ہیں، غریب امیر، غریبوں کو تو پتہ نہیں گھسنے بھی دیتے ہوں گے نہیں، وہ کھاتے ہیں سب مل کے۔ تو یہ طریقہ غلط ہے، وہ ایصال ثواب کریں میت کو، جتنا کر سکتے ہیں اس میں فائدہ ہے۔ ہاں اگر جس کی جیسے پہلی عید ہے تو وہ بے شک عید منا سکتا ہے، منانا چاہیے اس کو، مستحبات ہے اس پر عمل کرے، اور خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی سنت ہے عید کے روز۔ تو ہاں البتہ اب کسی کے میت ہو گئی ہے اور اب ظاہر ہے کہ وہ بیچارہ ہے غمزدہ، خوشی کا اظہار نہیں کر پا رہا، تو کوئی حرج نہیں ہے، بس قصداً ایسا نہ کرے۔ اور اگر وہ عید کے دن صاف ستھرے کپڑے پہنے اور عید کی نماز بھی اس پر واجب رہے گی، عید کی نماز بھی پڑھے، اور اگر اپنے غم کو دبا کر
وہ اگر مبارکباد بھی دیتا ہے عید کا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، عید کی مبارکباد بھی دے، خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، بلکہ خوشی کا اظہار مستحب ہے عید کے دن۔ غم اپنی جگہ پر ہے، وہ دل میں ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ بندہ بے بس ہے، لیکن پہلی عید جو 3 دن کے بعد بلکہ کئی ماہ کے بعد جو پہلی عید آتی ہے پھر غم کا ماحول بناتے ہیں بعض جگہ پر، یہ تو بالکل ناجائز ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ صرف سوگ اس کے لیے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 ماہ 10 دن بیوی سوگ کرے گی۔ لوگ بولیں گے انہوں نے تو شکر کیا ہے مر گیا جان چھٹ گئی، یعنی لوگ بولیں گے ابھی انہوں نے تو شکر کیا ہے مر گیا جان چھوٹ گئی ہے، اب دیکھو کیسے اپنے معاملات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا بھی زیادتی ہے، حکم شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کیا چیز ہم نے اس میں سے دور کرنی ہے اور باقی کیا چیز ہے جو استعمال کرنی ہے؟ اسلام بھائی کے ہاتھ میں وہ بتاتے رہیں گے آپ ان کو کچھ؟ یہ لٹک رہی ہے، یہ چربی ہے، یہ کھائی جائے گی۔ جزاک اللہ۔ اور اس میں غدود، ماشاءاللہ، ہاں یہ غدود ہے۔ اب مزید اس میں تھوڑی بہت چربی ہے، جتنا نکل سکتے نکالنی چاہیے، باقی غدود پھینک دیا جائے۔ یہ آپ نے غدود کیوں الگ کروا لیے؟ یہ تھوڑی چربی ہے، غدود کھانا جائز نہیں ہے۔ غدود مکروہ تحریمی ہے، یعنی مکروہ تحریمی ناجائز اور گناہ ہوتا ہے، یہ غدود ہے اور یہ چربی ہے۔ اب یہ تھوڑی سی چربی رہ گئی، اب کیا کریں اس کا، یہ اتنا تو یہ تو کہہ رہے یہ ابھی تکلفات ہو رہے ہیں، باقی گھروں میں جو کچھ ہوتا ہے۔ یہ آپ انگلی کے اشارے سے بتا دیجئے یہ غدود ہے؟ ہاں یہ غدود ہے جی۔ امیر اہل سنت نے اس کا حکم بیان کیا ہے، یہ ہم نہیں کھائیں گے، اور باقی چیزیں جو استعمال ہونی تھی اس کی آپ نے ترغیب دلا دی ہے کہ وہ چربی کا، یہ چربی ہے، یہ غدود ہے، یہ غدود نہیں ہے، یہ بوٹی ہے۔ یہ غدود ابھی سب واضح نہیں ہو رہے، تھوڑا تھوڑا اس میں چیچڑا لپٹا ہوا ہے، واضح غدود بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کھایا جائے گا، یہ جو پیلا پیلا ہے نا، یہ کندھے تک کھچا ہوا ہوتا ہے پٹھا، اس کو بھی ہاں منع ہی کھانا۔ یہ تھوڑا ہمیں دکھائیں بھائی، یہ امیر سنت کیا فرما رہے ہیں؟ اب یہ ہے پٹھا یا کچھ اور؟ اس کندھے کی طرف جو کھچا ہوا ہوتا ہے، ہاں اسی کا ٹکڑا ہی ہے، پٹھے کا، تو پٹھا کھانا بھی منع ہے۔ اگر کھانے میں پک جائے تو جی نکال دیا جائے اس کو۔ ٹھیک ہے۔ یہ نرم ہڈی ہے، اس کو چبنی ہڈی بھی بولتے ہیں، یہ کھانا جائز ہے۔ یہ دستی کے مرکنی ہڈی بھی بولتے ہیں، جی مرکنی ہڈی، سبحان اللہ، مرکنی ہڈی، چبنی ہڈی، ہماری میمنی زبان میں اس کو کونی ہڈی، کونو ہڈو۔ واہ، یہ پلاسٹک کی طرح، جیسے سمجھانے کے لیے اس کا پلاسٹک کی طرح ہوتا ہے، یہ چبا کر کھائیں بڑا مزیدار ہوتا ہے، یعنی میرے کو مزہ آتا ہے، اب سب کو مزیدار لگے یا نہ لگے۔ اس کو قیمے کے ساتھ بھی اگر وہ بغدے کے ساتھ کر لیا نا، قیمے کے ساتھ ٹکڑیاں اس کی، اور وہ اس کا جو سانس کی نلی ہے اس کی بھی اگر ٹکڑیاں مکس ہو نا قیمے کے ساتھ باریک کر کے، تو قیمے کا ذائقہ بہترین ہو جائے گا۔ یہ بونگ کی بوٹی ہے، یہ نس کھائی جاتی ہے، یہ پٹھا ہوتا ہے شاید، نروٹھا، تو یہ کھا جاتا ہے پک کر، یہ بالکل پیلا پیلا ہو جاتا ہے پائے کی طرح۔ مسالے بھی بنائے ہمارے اسلام بھائی نے، ہم نے پپیتا بھی لا کے یہاں رکھا ہوا ہے گلانے کے لیے۔ ہاں یہ کچا پپیتا، وہ جو اس میں بوٹیاں سیکتے ہیں نا، اس میں مسالے میں مکس کر کے لگاتے ہیں، مگر یہ 10-12 گھنٹے پہلے لگانا پڑتا ہے نا۔ 25 منٹ لگ جائے تو یہ سیٹ ہوگا، اچھا زیادہ لگانے۔ 20-25 منٹ۔ اچھا، زیادہ مقدار میں اگر پپیتا لگا لیں، خالی مسالے سے کام نہیں چلے گا، گلانے کے لیے ضروری ہے۔ نگران شورت سے عرض ہے کہ یہ 2-3 پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ نہیں پپیتا کیا ہے، کون سی؟ نہیں، یہ پپیتا تو اب پپیتا قوم جانتی ہے، دانے والا پپیتا ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں دانے پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ جس دوا کا نام لیا نا آپ نے،
ये पेन किलर है, पेन किलर दवाएं गुर्दों को डैमेज कर ये सकती कच्चा है, पपीता है नुकसान करती है। तो गलाने के लिए इसको इस्तेमाल किया ये जाएगा। कुदरती ग़िज़ा है, हमारे इस्लाम भाई जल्दी टेबलेट वगैरह खाएंगे। से बचा जाए। वो तो सालन गलाने के लिए तो सोडा डालते हैं, वो डंठल डालते हैं, उसके पुदीने के, सुपारी छालिया डालते हैं, और सुना स्टील की चमची भी डालते हैं, या खुस्पा चीनी भी डालते हैं। तो मिठास तो गला ही देता ना, बंदा गल जाता है मीठी बातों से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अभी ये मदनी चैनल के नाजरीन से मेरी ये मदनी इल्तिजा है कि माशाल्लाह अभी आप ये हमारे सारे ये मनाजिर देख रहे थे। अभी तक तो ये कच्चा कच्चा दिखा दिया आपको, अब इंशाल्लाह इसको पक्का पक्का करेंगे। हमने यहाँ पर अपने ये कोयले वगैरह भी रखे हुए हैं, तो इंशाल्लाह कुछ देर के बाद सेकने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। कॉल चला रहे हैं फिर हम। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अक्सर ये सुना है कि जिस घर में कुर्बानी होती है तो वो जो बकरे की कलेजी वगैरह है उससे वो खाए, तो अगर कुर्बानी का लेट हो जाए तो वो तमाम दिन भूखा रहे, उस वक्त भूखा रहे, उसमें कुछ नहीं खा सकता। ये मुस्तहब है कि कुर्बानी के गोश्त से, यानी जिसको कुर्बानी करनी हो ईद के दिन, तो उसको चाहिए कि सुबह सादिक से लेकर कुछ खाए पिए नहीं, और कुर्बानी के गोश्त से आगाज करे। कलेजी का भी लिखा है, कलेजी से आगाज करे, तो ये मुस्तहब है। अगर पहले किसी ने खा पी लिया तो गुनाहगार नहीं होगा। वाकई अब ये कि वो गोश्त देर में पका, देर में कटा, तो अब भूख भी लगी है तो खा लिया तो कोई हर्ज नहीं है, भूख नहीं लगी वैसे ही खा पी लिया, कोई हर्ज नहीं है, गुनाहगार नहीं है। जी ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो जानवर को दिखाया, पट्टे वगैरह उसको जो है वो बंधे होते हैं, कोई डेकोरेशन के तौर पर कोई चीज जो है जानवर को पहनाई होती है, तो कुछ लोग उसको काट कर फेंक भी देते हैं, और कुछ जो है उसको बच्चे बाज़ घूम रहे होते हैं वो भी उठाकर जो है वो ले जाते हैं। क्या इसका दुरुस्त जो है वो इस्तेमाल, क्या फेंका जा सकता है इनको? ये माल है, जी ये माल है, और जिसने कुर्बानी की है उसी जिसका जानवर है, ये उसकी मिल्क है, सही। तो ये इसको बेचकर अपने पैसे भी खा सकता है, सदका करना भी उसके लिए शर्त नहीं है, तो ये जाया नहीं करना चाहिए, इसको सही सलामत उतार लिया जाए जी, और बेशक किसी को तोहफे में दे दे। जो जानवर पालते हैं तो खुशी खुशी ले लेंगे, 2-2, 3-3 हजार का ये होता होगा जो मुंह पे ये पहनाते हैं। जी रस्सी भी ज़ाहिर है मुफ्त नहीं आती, वो भी उसको निकाल कर साफ सुथरी दे दी जाए किसी। पिछले संभाल के रख सकते हैं, खुद अपने इसके मिल के ये जो चाहे करे। पिछले साल बाबा किसी ने अपने जानवर का इसी तरह हार उतार के रख दिया, क्या वो इस मर्तबा अपने जानवर को पहना सकता है? तो है ही उसी की मिल की है, वो ना पहना बेच दे, पैसे खा ले, इसके सदका करना भी वाजिब नहीं है इसका। आप एक शेर की वजाहत फरमा दें। रक्से बिस्मिल की बहारें तो मिना में देखी, दिले खूना बफशां का भी तड़पना देखो। यहाँ मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये मीना में जो हाजी कुर्बानियां करते हैं तो उसकी मंजर कशी की है, यानी कि हाजियों से कहा कि हाजी आपने मीना में तो ज़बहशुदा जानवर को उछलते फुदकते देखा, तड़पते देखा। बिस्मिल के माना है ज़बहशुदा जानवर, तो ज़बहशुदा जानवर का आपने रक्स देखा, तड़पना देखा। अब मदीने चलो और वहाँ इश्क रसूल में दिलों का तड़पना देखो, और ऐसे आशिकों के दिल के जो मतलब जैसे खूनाबा फिशा। अब आशिकों के यहाँ तड़पने के मनाजिर देखो कि आका की मोहब्बत में किस तरह तड़पते हैं उशाक। ये जो बाबा मेंढा शरीफ है, ये इसको मेंढा शरीफ, मेंढा अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा है, और ये है भी अमीर सुन्नत। सुभान अल्लाह, क्या बात।
हाँ तो शराफत है इसमें, अजमत है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये कुर्बानी के जानवर की 3 टांगें बांधी जा रही है, तो ये 3 टांगें बांधना अच्छा है। एक टांग पिछली खुली रखनी चाहिए, जो खुली रखी गई है, तो इससे जानवर तड़पेगा। और अब वो 3 टांगों पर तो जोर लग नहीं सकेगा, उसका बंदी भी होंगी, एक को पूरा जोर लगाएगा, तो उस तरह ये पूरे जिस्म का खून जो है इस तरह वो निकालेगा इसको। तो बदन में अगर जानवर के खून रह जाए तो वो जाहिर है कि मुज़िर सेहत होता है। तो ये तरीका जो है ये मुनासिब तरीका, उम्दा तरीका है। अच्छा, इस पर राइज नहीं है, गोश्त फरोश बांधते नहीं है, इसको वैसे ही काट देते हैं, जायज वो भी है, लेकिन ये अच्छा तरीका है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुश्रिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। अब वो ज़ब्ह कर दीजिए। अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिक इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व हबीबिक मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अभी जो जानवर ज़बह हुआ है, ये आप स्क्रीन पर अगर इसको देखेंगे तो अभी इसको ठंडा होने की मोहलत दी जाएगी कि ये जानवर अभी ठंडा हो जाए। थोड़ा सा दिखाएं। अभी ये बेहोश है, अभी हाँ थोड़ी देर के बाद हो सकता है ये उछल कूद मचाए, क्योंकि उमूमन इसी कैफियत के अंदर जैसे अभी ये इसको काट दिया गया है, तो हमारे पास गोश्त फरोश हजरात जो है ना, इसको काटना, सी गर्दन अलग करना, सी खाल उतारना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। अभी जैसे कि यहाँ इसको छोड़ा गया है, और जैसे अमीर सुन्नत ने भी जैसे हमें मतलब बताया, ये देखिए ये हिला है ना, होश में आ गया। अब ये मेंढे के अंदर ही उम्मन ज्यादा देखा गया, बकरा भी करता है, मेंढे में ज्यादा होता है, ये बेहोश हो जाता है। तो अगर ये इस वक्त अगर इसके इर्द गिर्द लोग खड़े हों तो ये खून भी इसकी टांगों से कपड़ों पर उड़ता है। ये एक टांग जो इसकी खुली रही, जिसकी वजह से ये जोर लगाने में कामयाब हो रहे हैं और इनका खून इस तरह और मजीद बाहर निकलने की सिचुएशन में आता है। तो ये अब आप देखिए कि ये चंद मिनट के बाद तो इसने हरकत शुरू की है, और इस हरकत के ये अभी इसमें इतनी जान है कि ये इस कदर जोर से अपने आप को हिला पा रहा है जानवर। अब इसी में अगर कोई इसकी खाल उधेरना शुरू कर दे तो जरा गौर करें, जो अपने यहाँ जानवर ज़बह कर रहे होते हैं, कि कितनी तकलीफ होती होगी इस तरह कि ये अभी तक इसके अंदर कितनी जान बाकी है। आप देखिए ये अभी भी इतनी देर कट जाने के बावजूद भी इस जानवर में अभी जान बाकी है, और ये अभी ये देखिए ये अभी भी हिल ही रहा है।
आम तौर पे गोश्त फरोश जो है ना वो ये करते हैं कि इसी हालत में बेचारे की गर्दन को मजीद काट के उसको चटखाते हैं और हराम मगज काट देते हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, लेकिन ये बिला वजह की तकलीफ है, ये जुल्म है। हाँ, ज़बह करने के बाद इसको भाई छोड़ दिया जाए, ये जब तक इसकी बिल्कुल मुकम्मल तरीके पर रूह ना निकल जाए उस वक्त तक अब छुरी इसको नहीं चलानी, इस पर काटना नहीं है, छीलना नहीं है, खाल नहीं उधेड़नी, पाए काटना नहीं, ये भी बहुत तकलीफ है। अपने ऊपर आदमी गौर करेगा, मामूली की सुई भी अगर चुभो तो जान निकलती है, तो बेचारे की टांग काटेंगे, ये बेजबान किसको फरियाद करेगा। ये तो हम यहाँ सब ये देखते हैं, बाकी स्लोटर हाउस में तो खुदा जाने क्या करते होंगे लोग। लेकिन बाबा ये देखिए, ये मेरा ख्याल है कटे हुए भी 4 से 5 मिनट तो हो गए या इससे ज्यादा हो गया। जानदार है ना। हाँ, अभी तक इसके अंदर अब चाहे 10 घंटे लगे इसको, अब हम छुरी नहीं लगा सकते इसको। ये ठंडा होगा जब भी इजाजत मिलेगी शरअन इसको। अब गोश्त फरोशों को होती है इसमें बाबा जल्दी, और ये भागने की करते हैं, इसमें ये खाल उधेरना शुरू कर देते हैं और अपना वो छुरा लेकर इसके अंदर घोंप देते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो अब इसको मजीद ये देखिए, अभी तक ये ठंडा नहीं हो पा रहा। अब अगर इसकी इस पर रस्सियां खोल दी जाए तो क्या हो सकता है कि जल्दी ठंडा हो जाए। फिर ये कि ये घूमेगा, अगर जान होगी ना चारों तरफ ये खून जो है ना ये छिड़काव करेगा इसका। अच्छा, यानी इसकी टांगों से उड़ेगा खून, फिर एकदम उसमें आ जाएगा ना पावर में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रास्ते में आते हुए देखा है एक चीज कि 4-5 बकरों को एक साथ ही तकबीर जो है ना वो डाल के, यानी पहले एक को ज़िबा किया जिसकी गर्दन पे छुरी फेरी, हाँ। फिर दूसरे जानवर को किया, फिर तीसरे को किया, उसको फायर करने से पहले उसने पढ़ा नहीं तकबीर उसने सही तकबीर उसको दी, हर जानवर पर पढ़ी ना जी, हर जानवर तकबीर तो ज़बह तो हो गया, लेकिन उसका गोश्त बनाने से पहले, उसको तैयार करने से पहले, उसकी खाल उतारने से पहले ही दूसरे को भी तकबीर जो है वो कर दी, फिर दूसरे को करने से पहले ही, यानी अब 2 हो गए, अब साथ में एक और कर दिया, तो 4, 5, 6, 8, 10 भी बाज़ एक साथ ही उनको जो है वो तकबीर इन मानों पर एक साथ, जी, इन मानों पर एक साथ, एक जानवर पर एक बार तकबीर कही जी, ये तो सही है, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, तो अब ये 10 को अगर एक साथ वो लाइन में लिटा दिया तो इस पर क्या आपको इश्काल क्या है? मेरा जहन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब तक एक जानवर का अभी तक गोश्त ही तैयार नहीं हुआ, उसको अभी तक उसकी खाल ही नहीं उतारी, उसको की सफाई सुथराई नहीं की, तो आप तकबीरें फेर के जानवर जो है वो रखते जा रहे हैं, पहले एक को तकबीर फेर दी, इसमें टाइम की बचत है ना। अब ये जब तक तड़प रहा है तो क्या वो हाथ बांध के खड़ा रहेगा? इसमें ये रहनुमाई फरमा दे कि जब 10-12 बकरों को लगातार लिटाया हुआ है तो एक को छुरी फेरी बकिया 9-10 के सामने, वो एक अलग बात है। इस पर भी रहनुमाई फरमा दे। ये एक जानवर के सामने दूसरा जानवर ज़बह करना मना है, उसके सामने छुरी तेज करना भी मना है। इनके सवाल में खैर ये जिम्नन ये मदनी फूल मौजूद है, अलबत्ता ये कि अगर ये इतने सारे ज़बह करते हैं ना ये प्लस है, सही, वरना एक जानवर को आप बोलो जल्दी छीलो वो जिंदा छीलेगा इसको। सही। वक्त ये भी होता है कि मालिकान को भी तसल्ली हो जाती है कि हमारे 10 कट गए एक साथ ही, इतने कट चुके हैं, ज़बह हो चुके हैं। और बाज़ का ऐसा होता है कि कस्साब गोश्त फरोश अफराद जो होते हैं वो इधर वाले जानवर को ज़बह किया और फिर ठंडा करना, तो हम खुद भी कहते हैं कि ठंडा होने दें, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही ठंडा कर देते हैं बापा, यानी वो कहीं और चले गए, दूसरे का भी गिरा गया, कुछ उधर काम कर दिया, कुछ और, इसमें क्या कहेंगे? ज्यादा ठंडा होता है तो खाल जरा उतारना भी दुश्वार होता है उसमें, लेकिन ये माहिर होते हैं, थोड़ा बहुत गोश्त खींच लेंगे खाल के साथ, इनका क्या जाता है। लेकिन ज़ाहिर है ये भी इसराफ, अगर माल जाया हो रहा है खाल में। ये कस्साब बाबा उम्मन 2-2, 3-3 घर वालों से वादा कर लेते हैं कि सबसे पहले आपके यहाँ, सबसे पहले आपके यहाँ, वो तीनों मुतमईन होकर बैठे हुए, ईद पढ़ने ही आ जाने, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, इधर सलाम फिरना, इधर आ जाना। इसमें जो समझदार ग्राहक होते हैं ना वो बोलते हैं तुम छुरियां पहले रख जाओ,
ये मेरा ख्याल है किसी के यहाँ चुरियाँ और अपना सामान भी रख के जाते हैं कि हम ईद पढ़ कर आए, अब इनको आना पड़ेगा ईद पढ़ के। आप एक ज़हन देते हैं कि जब कुर्बानी कर रहे हो तो उसमें ये भी तस्वुर करें कि नफ्स को भी जो है वो ज़िबा कर रहा है, तो इससे क्या मुराद है? अपनी नफसानी ख्वाहिशात को भी मैं ज़बा कर रहा हूँ। अब दुनिया की लज्जतों से अपने आप को बचाऊंगा, गुनाहों से दूर रहूंगा। रिजवान अली बसीरपुर रुकाड़ा से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हसीब अत्तारी है, मैं खैरपुर टामेवाली से बात कर रहा हूँ। या रायपुर से अब्दुल गफ्फार नूरी अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर मोहम्मद हिजर जमनी से बात कर रहा हूँ। प्यारे बापा जान, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, सबको खैर मुबारक हो। माशाअल्लाह। मोहम्मद जुनैद अत्तारी जयपुर हिंद अजमेरी काबीना। मेरा बापा जान से सवाल ये है कि कुर्बानी से पहले बकरे को जलेबी खिलाई जाती है, ये जलेबी खिलाना कैसा है? बकरा जलेबी खाता है? नहीं, अगर खाता है तो खिलाने में हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। सालन खिला देते हैं, बकरे को रोटी खिला देते हैं और बोतल भी पिला देते हैं, टाफियां भी खिलाते हैं। शायद बच्चे कह रहे तो टाफी खिला सकते हैं। तो अगर वो खाता है और मुज़िर सेहत नहीं है, अब वो ज़बा के वक्त जलेबी खाएगा तो बेचारा जिएगा कितनी देर? वो ज़बा ही होना है उसने। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है, ऐसी अगर कोई रस्म वगैरह होती है कि जलेबी खिलाएंगे तो ही कुर्बानी करेंगे, तो इसकी क्या हैसियत होगी? अगर इसको शरअन जरूरी ना समझे और वैसे अगर जलेबी खिलाए तो जायज है कि इसके बगैर कुर्बानी नहीं होती या जलेबी नहीं खिलाएंगे तो गुनाह हो जाएगा। अगर ये तसव्वुर है तो ये गलत है तसव्वुर। शरीयत ने जिस काम को गुनाह नहीं कहा, अपनी सोच के हिसाब से लोग अगर कोई उसको गुनाह कहें तो ये भी गुनाह है। न शरीयत पर ये इफ्तिरा करना कहलाता है, न शरीयत पर ये तोहमत बांधी कि शरीयत इसको गुनाह नहीं कह रही, बंदा कह रहा है कि गुनाह है। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। ये मदनी मुन्ना भी एक सवाल करें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कुर्बानी के जानवर में बच्चों का अकीका हो सकता है? कुर्बानी के जानवर में अकीके का हिस्सा डाला जा सकता है। बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, तो इसमें अगर अकीके का हिस्सा कोई डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अभी आपको छींक आई और बिल्कुल आवाज जो है वो मध्यम सी थी। बाहर लोग तो यूं छींकते हैं कि बंदा करीब बैठा हुआ एकदम हिल जाता है, क्या हो गया, क्या फरमाया आपने इतनी कम आवाज इसमें क्यों दफाई? एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे आवाज ऐसे भी हो। तो मेरी आवाज तो पूरी दुनिया में गूंजी होगी इस वक्त, ये भी तो देखें। मैंने अल्लाह लेला माइक पर छींक मारी है। वैसा छींक की आवाज कसदन बुलंद करना, इसको बाहर शरीयत में हमाकत लिखा है। जितना हो सके पस्त दबाए, छींक की आवाज कम निकाले। हजरत साहब से ये सवाल है कि हलाल जानवर की ओजड़ी खाई जाती है कि नहीं? ओजड़ी खाना मकरूह है, तहरीमी है, नाजायज और गुनाह है इसका खाना। प्यारे बापा जान फरमा दीजिएगा कि हिरने की भी कुर्बानी होती है? हिरनी की कुर्बानी नहीं होती क्योंकि ये जंगली जानवर है और जंगली जानवर की कुर्बानी नहीं होती। अलबत्ता हिरनी का गोश्त हलाल है, ज़बह शरीर से हासिल किया हलाल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। बाबा नाथ खान से अगर वो शेर सुन लिया जाए, हिरनी के गोश्त से हिरनी की कबाब याद आ गई बाबा। ये सीख कबाब मुराद है क्या? ये हमने वो जो भी कबाब हो, जली जली उसकी पैदा है सोज़िशे चश्मे वाला कबाब आहू में भी न पाया मज़ा जो दिल के कबाब में है, कबाब आहू में भी न पाया
مزہ جو دل کے کباب کباب آہو ہرن کو بولتے، یعنی کہ جلی جلی اس کی بو سے پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں۔ مفہوم یہ کہ ویسے آہو کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، ہرنی کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، اور جو عشق رسول میں جو دل جلتا ہے تو عشق رسول کی سوزش اور جلن، اس میں جو لذت اور کیف و سرور ہے، اس کے سامنے ہرنی کے گوشت کا کباب کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں، یہ دل سے مراد بکرے کا دل نہیں ہے یہاں، بلکہ عشق رسول میں وہ تڑپنے والا دل۔ سبحان اللہ۔ جلی جلی بو سے بنا ہے سوزش عشق چشم والا، میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں۔ یہ رکن شورا کی کال آئی ہوئی ہے، ہم چلا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے عطار عبدالحبیب اتاری کی جانب سے مکہ پاک کی پرکیف فضاؤں سے تمام عاشقان رسول کی خدمتوں میں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ بالخصوص دل سے دعا ہے ان اسلامی بھائیوں کے لیے جو عید کے دن اور عید کے تینوں دن اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے، باربیکیو اور بوٹیاں کھانے کی بجائے اپنے کپڑے بازوقات اور ہاتھ خون آلود کر کے قربانی کی خالیں اٹھا رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پر، سائیکلوں پر، سوزوکیوں میں، گاڑیوں میں۔ اللہ کریم آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، میں مکہ پاک میں دعا گو ہوں یا اللہ ان کو قدم قدم پر برکتیں بھی عطا فرما، ان کی حفاظت بھی فرما، ان کی اس کوشش کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی انہیں بہترین جزا بھی عطا فرما، اور میرے مالک ان سب کو آئندہ سال حج کی سعادت بھی نصیب فرما۔ آپ بھی میری بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے۔ ماشاء اللہ، تقبل اللہ تعالی۔ دنیا کی کسی بھی چیز میں لذت نہیں ہے، لذت جنت میں۔ وہ کیسے؟ وہ یہ سیخ دیکھ کر مجھے یاد آیا، بوٹیاں سیخ پر چڑھا رہے تھے تو انہوں نے دکھائی، تو میں نے کہا اب دیکھو جنہوں نے کھایا نہیں صبر کیا ان کو جب یہ ملیں گی۔ پھر میں نے کہا وہ صبر کیا یا بیچاروں کو کھانے نہیں دیا گیا، اب وہ صبر بھی نہ ہوا، بامر مجبوری ہے، پڑھتے رہے بیچارے اور بیٹھے رہے، اب وہ دل جلتا رہا ہو، جو بھی اب کیفیت ہو سکتا ہے واقعی کسی نے صبر بھی کیا ہو۔ تو مجھے یہ یاد ہے جیسا اب ہم کھا کر ہم اپنے حساب سے کھا چکے، اب یہ بوٹیاں ہمارے سامنے آئیں گی تو ہماری وہ کیفیت نہیں ہوگی، کھانے کا جو شوق ہے ہو سکتا ہے ہم ایک آدھ بوٹی لے لیں ہرس کی وجہ سے، ورنہ وہ کھانے کا جذبہ جو ناشتے سے پہلے تھا وہ ختم ہو گیا۔ یوں مطلب پیٹ بھر جانے کے بعد کیسی نعمت کھانے کی آ جائے نا، اب اس کی لذت نہیں رہتی، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جتنا کھائے جتنا کھائے جتنا کھائے کھائے چلا جائے لذت ختم نہیں ہوگی۔ تو اس طرح ہر نعمت کی لذت جو ہے وہ صرف جنت میں، دنیا میں لذت نہیں ہے، کیونکہ بندے کی خواہش پوری ہو گئی، لذت خلاص ہو گئی۔ حالانکہ وہی لذیذ چیز ہے جس کو ہم لذیذ سمجھتے تھے، ہمارے حق میں وہ لذیذ نہ رہی۔ پیٹ بھرنا اور چیز ہے، اب جیسے ہمارا پیٹ بھرتا ہے تو کہاں خالی کرتے ہیں، وہاں صورت دوسری ہے، خوشبودار ڈکار آئے گی پیٹ خالی ہو جائے گا۔ اب مگر وہاں لذت ختم نہیں ہوگی، لذت مسلسل ہوگی، اور وہاں جو لذت کی جو مثال دی گئی ہے نا کہ وہ لذت کس طرح کی ہوگی، شاید وہ جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ گئے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ جنت جو ہے وہ
बस वो नेमत ही नेमत है, नेमत ही नेमत है। परिंदा उड़ता हुआ जा रहा, जी चाहा कि अब इसकी डिश मिलनी चाहिए, तो फौरन डिश तैयार है, हाथ में आ जाएगी। गदा भी सखी के घर से मुराद क्या है? मैं भी सोच रहा था हाँ कि अल्लाह ताला के लिए लफ्ज सखी इस्तेमाल नहीं होगा, जवाद होगा। सरकार के लिए होगा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो सखावत वो है कि खुद भी ले, दूसरे को भी दे, अपने लिए भी रखे। अल्लाह ताला किसी चीज का मोहताज है नहीं, उसको हाजत है ही नहीं, उसको सखी नहीं कहेंगे, वो जवाद है। जूद वो होता है कि अपने लिए ना रखे, जो है वो दे दे। तो अल्लाह ताला देता है, लेता नहीं है, सर वो हाजत ही नहीं उसको किसी चीज की। अब जैसे कि बाज लोगों के यहाँ कोई किसी का इंतकाल हो जाता है और बंदा अगर कुछ नेक नमाजी है, वरना मरने के बाद तकरीबन वो नेक बन ही जाता है, या विलायत का ताज भी उसको लोग दे ही देते कि बड़ा नेक आदमी था, परहेजगार था, भले वो नमाजें ना पढ़ता हो लेकिन बाखलाक बहुत था, मिलनसार था। इस तरह उसके फजाइल लोग बयान करते हैं। तो फिर बाद लोग बोलते हैं हाँ भाई नेक आदमियों की तो अल्लाह को भी जरूरत होती है। ये कुफ्र है। अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है, जरूरत हाजत उसको नहीं है, हम मोहताज है, हमको जरूरत है। तो ये जुमला ना कहा जाए जरा खूबसूरत बच्चा है वो फौत हो गया, हाँ तो अल्लाह ताला को ये चाहिए होगा तो दे दिया होगा, तो ये भी हाजत ही में है ना, चाहिए होगा, जरूरत होगी इसकी। तो अल्लाह ताला को किसी चीज की जरूरत नहीं। ये भी कलेमा कुफ्र है कि अल्लाह ताला को ये चाहिए होगा इसलिए उसने ले लिया, माअज़ल्लाह। तो जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो इस तरह के कुफ्रियात लोग बोलते हैं, बाज़ औक़ात बोलते हैं कि या अल्लाह इसकी जवानी पर भी तुझे रहम नहीं आया। ये भी सही कुफ्र है, खुला कुफ्र है, निकाह भी टूट जाएगा, ईमान खत्म हो जाएगा। इसी तरह बोलेंगे या अल्लाह इसके छोटे बच्चों पर तुझे तरस नहीं आया कि इसको उठा लिया, बच्चे बेचारे के छोटे, तो ये तरस नहीं आया, रहम नहीं आया। अल्लाह के बारे में ये कहना ये कुफ्रियात है। अल्लाह ताला नऊज़ुबिल्लाह बेरहम नहीं है, अल्लाह ताला रहीम व करीम है, तो सबको लेना, उसका ऐलान है। हर जानदार ने मौत का मजा चखना है, मरना तो है। बंदा पैदा बाद में होता, मरने का सामान पहले है। जब वो रहम में नुत्फा करार पाता है तो फरिश्ता उस जगह की मिट्टी उठाता है जहाँ इसने मरने के पैदा होकर मरने के बाद दफन होना है, उस जगह की मिट्टी उठाता है। इन्हें पहले तो अल्लाह ताला से सवाल करता है इसके ताल्लुक से। अब पैदा करना, अल्लाह ताला पैदा करना चाहता है उसको, तो मिट्टी उठाता है दफन की जगह से, उस मिट्टी से उसका पुतला बनाता है फरिश्ता माँ के रहम में। तो पहले से उसकी मौत के लिए जगह मुकर्रर तदफीन के लिए। तो इस रिवायत, इसी तरह की रिवायत के तहत आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जैसे जो जहाँ जिसकी मिट्टी होगी, मुराद इससे है कि जहाँ की मिट्टी से इसका बदन बना ये वहाँ दफन होगा। तो सैयदना सिद्दीक अकबर और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उसी मिट्टी से बने हैं जिस मिट्टी से सरकार नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुनव्वर बना है। जब ही तो एक ही जगह
तदफीन हुई है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेशक नूर है, तो कोई शक नहीं है, मगर बदन अतहर में मिट्टी इस्तेमाल हुई है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि इंसान की जहाँ पर कब्र बननी है, जहाँ पर उसी जगह से इंसान की इनके मट्टी ली जाती है। अब कुछ लोग वो होते हैं जैसे समुंदर में या दरिया में डूबकर हलाक हो जाते हैं, मछलियां उनको खा जाती हैं या इस तरह के बिखर जाते हैं उनके आज़ा वगैरह, तो उनका क्या, उनकी भी मिट्टी इसी तरह ली गई या वो कब्र में? इसमें न कि आखिर कभी कहीं जाकर जाना तो मिट्टी में ही है। समुंदर का आखिर तला तो है ना, वो मिट्टी होती है वहाँ, तो ऐन मुमकिन है कि वहां से मिट्टी ली गई है, कि वो समुंदर में वो गया और आखिर वो किसी के पेट में गया जानवर के, तो फुजिले की सूरत में निकला। और वो मतलब है ना कि वो अजबुल ज़ंब, इसको तो ये फना नहीं होती, बहुत बारीक जर्रा होता है जो खुर्दबीन से भी नहीं देखा जा सकता, ना आग जला सकती है ना जमीन उसको गला सकती है। तो वो जर्रा असली जिस्म की तरकीब उसी पर होगी, तो वो जर्रा वहां जाएगा। यही मतलब अल्लाह अलम, हदीस शरीफ की शरह के तहत नहीं कह रहा, वैसे अपने तौर पर अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ की मिट्टी वहां बंदा पहुंचेगा। अब ऐन मुमकिन है कि समुंदर के तह में उसकी मिट्टी ना हो। अजबुल ज़ंब जो है ये बहुत बारीक है ना, ये हवा में उड़ता उड़ाता हो सकता है इसकी मिट्टी जन्नतुल बकी की हो, और समुंदर में बाबुल मदीना के वो डूबा हो, उड़ता उड़ाता वहां उसको उड़ाती ले जाए। या बाबुल मदीना का जो समुंदर है ना, मैं तो कभी कभी उसको चूमता हूँ, क्योंकि ये सीधा ये समुंदर जो ना सीधा या बल खाता हुआ ये जद्दा शरीफ जाता है। वहीं से सफीना, हम सफीने में गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, खुशा झूमता जा रहा है सफीना। तो ये समुंदर जो है इसका नाम भी अरबी समुंदर है ना, बहरे अरब। हाँ, तो ये माशाअल्लाह बड़ा, मुझे तो बहुत मीठा लगता है ये समुंदर, ये मदीने ले जाता है ये समुंदर, मेरा भी मीठा लगता है। मैं वाकई इसको, आपने शायद देखा होगा, मैं चूमता हूँ इसके इशारे से, यार ये मदीने ले जाता है। हम तो निस्बत वाले लोग यार, कि ये ऐन मुमकिन है कि ये जर्रा जो है ये कोई परिंदा पानी पिए, परिंदे के पेट में चला गया, वो उड़ता उड़ाता कहीं उसने आखिर अपना पेट खाली करना है। अब ये किसी जमीन पर गिरा, अब हवा ने उसको उड़ाया, उड़ाते उड़ते उड़ते फिर दरख्त पे चिपका दो, कहीं गिरा दो, कहीं उठा दो, कहीं आखिरकार जन्नतुल बकी में जाकर वो उड़ता उड़ाता पहुंच जाए। कुछ कह नहीं सकते। हदीस की शराबी राय नहीं हराम है। मैं अपने तौर पर एक कयास कर रहा हूँ कि जहाँ की जमीन है, मिट्टी है, वहां पहुंचना है तो कुछ भी असबाब होते। जैसे सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम का एक दरबारी, नदीम के माना दरबारी होते, तो ये नदीम पर कुछ यानी कि वो एक कोई थे, वो घूर कर देख रहे थे, तो इनको वहशत हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि बस कोई हवा को हुक्म दीजिए तो मुझे दूर हिंदुस्तान पहुंचा दे। हवा ने उड़ाया और वो हिंदुस्तान पहुंच गया। तो जो घूर रहे थे वो तशरीफ ले गए, गायब हो गए। फिर वो लौट कर जब आए तो हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम को तो पता था, तो ये थे मलकुल मौत। तो तुम क्यों घूर रहे थे? उसको बोले मुझे हैरत हो रही थी कि इसकी मौत का वक्त करीब आ गया है और मुझे हुक्म है कि इसको हिंद की सरजमीन पर इसकी रूह कब्ज करनी है, और ये बहुत दूर आपके पास बैठा हुआ है। अभी हिंद कैसे पहुंचे और कैसे मैं रूह इसकी कब्ज करूं? इतने में खुद ही असबाब हो गए कि इसने आपसे अर्ज किया कि मुझे हिंद पहुंचा दो। तो यूं उसको कजा ले गई, हिंद हवा से उड़ता हुआ पहुंचा और मैंने रूह कब्ज कर ली और आपकी बारगाह में हाजिर हो गया। तो ये है कि जहाँ की मिट्टी है वहां तो एनी हाउ पहुंचना है। जो हदीस पाक का एक मफहूम है, बेशक होती है। हाँ, ये भी अर्ज किया मैंने कि पानी की मिट्टी में भी तो वो रह सकता है। वहाँ अजब ज़म जो है उसका होता है, उसके अंदर भी ज़र्रात वगैरह। जी हाँ। वफा इसमें अर्ज ये है कि जैसे हदीस पाक का मफहूम है कि तुम में से जिससे हो सके मदीना में मरे, मदीना शरीफ में मरे, कि जो वहाँ पर जिसका इंतकाल होगा तो मैं उसकी शफात फरमाऊंगा, और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तो अब ये वहाँ पर अगर जन्नतुल बकी शरीफ में अगर इसका जर्रा चले जाते हैं तो क्या वहीं से फिर क़यामत वाले दिन उठेगा? ये
बज़ाहिर तो यही समझ में आ रहा है कि हश्र जो जन्नतुल बकी वाले उठेंगे, लेकिन मदीने में मरने की जो वो सराहत है कि मदीने में मरे, तब और कहीं मरा और आते हैं लोग बकी में सोर्स फुल होते हैं, तो ये वहाँ मदीने में मरे नहीं है, तो वल्लाहु आलम वहाँ मदीने में मरने की फजीलत उसको हासिल हो, ये हम अपनी अटकल से नहीं कह सकते कि तुमसे हो सके वो मदीने में मरे। और आला हज़रत ने शेर इसी हदीस के तहत शेर फरमाना, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। तो ये बहरहाल वहाँ मरने की सराहत है हदीस से बात। इनके जन्नत की तरफ जाने लगेंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आप अपने मज़ार पुर अनवार से बाहर तशरीफ लाएंगे, फिर दीगर शेखैन करीमैन हश्र की तरफ। इस तरह हश्र तो ये उठना, ये उठे ही हश्र हुआ जी, मैदान क़यामत की तरफ, मैदान क़यामत की तरफ। तो उसके बाद फिर इनके अहले मदीना जन्नतुल बकी शरीफ का है, तो इस तरह ये वहां से फिर उठेगा। ये सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस शान से अपने मज़ार फाइजुल अनवार से बरामद होंगे, एक हाथ में सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक तरफ फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यूं तशरीफ ले आएंगे, अहले बकी आपके पीछे होंगे। ये शान से जुलूस अपने भी होंगे इंशाअल्लाह किसी कोने में आका के कदमों में। ओ मरहबा या मुस्तफा की धुएं मचाते हुए इंशाअल्लाह मैदान क़यामत। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह। गुलामे अहमद मुख्तार यूं पहचाने जाएंगे कि होगा हश्र में भी उनका नारा, या रसूल अल्लाह, कि होगा हश्र में भी उनका नारा, या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल अल्लाह। खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा, खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा, फ़िक़्ह शरीयत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा।